Hi friends, today I want to cover Indigo, which is Interglobe Aviation Share. Is it going to go up the roof, reaching 10,000 levels in future, or is it going to go down like a falling knife to even 1,000 or 500 rupees share, just like every other airline has happened in the past? With data points, I will try to cover what has happened in the past, what has been happening in the very recent past in the last few years, and what is upcoming for future. So we'll start with the period called as massive loss period for Indigo, जिसके अंदर मैं cover करूंगा from FY18 to FY21 when Indigo's sales from FY18 were 24,000 crores, as you can see on the screen. It went to as low as 15,000 crore because of the COVID crisis coming into picture. Now sales went down by 35%. If we see operating cost from 20,500 crore to 19,000 crore, it went down by just 5.5%. So we understand that there are certain fixed costs for the airline which it has to bear whether your sales are happening or not. Now the result, what happened was your operating profit, which is your sales minus your expenses, went down by 200%. So you're at minus 200% with respect to your operating profit. And if you see the operating profit margins, from plus 14%, you went to minus 23%. Now this was a massive loss period because sales dipped down because of COVID. Now there's an interesting fact, which is your massive profits period. Now massive profits period happened between FY 2022 to FY 2025 when sales skyrocketed from rupees 26,500 crore approximately to 84,000 crores. Now this is an absolute jump of close to 215%, with your operating costs also going high from 30,500 crore to 71,500 CR. What this brings as a result is your operating profits went from minus 3,700 crore to plus 12,600 something crores. That means your profit margins from minus 15% to plus 16%. अब ये सब numbers, why I was telling you is to explain you a very important concept which is called as operating leverage, because in an airline industries the concept says कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एयरप्लेन्स की मेंटेनेंस, लीज, ये सारी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है. एंड ये गेम जो है सारी ऑपरेटिंग लेवरेज के आसपास खेली जाती है, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ डबल एज स्वॉर्ड. क्यों डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं? कि एक तरफ आपकी है गुड इकोनॉमिक साइकिल, जो आपकी सेल्स बढ़ती रहेगी. तो हमने देखा कि एक तरफ गुड इकोनॉमिक साइकिल है एंड एक तरफ बैड इकोनॉमिक साइकिल है, जब जैसे कोविड जैसे क्राइसिस आ गए या इकोनॉमी में डिप्स हैं. सो इफ यू सी, एक तरफ गुड साइकिल में प्रॉफिट्स आपके मैग्नीफाई हो रहे हैं एंड एक तरफ बैड इकोनॉमिक साइकिल में लॉसेस आपके मैग्नीफाई हो रहे हैं, क्योंकि सेल्स ग्रोथ, आई टॉक अबाउट फर्स्ट द गुड इकोनॉमिक साइकिल्स, आपकी सेल्स ग्रोथ बहुत बड़ी, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी मोटा उतनी ही रही, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ प्लेन्स है, उनकी मेंटेनेंस है, लीज है. आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती हैं, सैलरीज होती हैं और 10 खर्चे होते हैं, तो इससे आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं. बट ये जो आपकी बैड इकोनॉमिक साइकिल है उसके अंदर आपके लॉसेस क्यों मैग्नीफाई होते हैं? क्योंकि आपकी सेल्स ग्रोथ तो डिप हो रही है, चाहे वो स्लोली क्यों ना डिप हो, पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट मेंटेन है. मतलब आपको उतना पैसा तो देना ही देना है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि प्लेन खड़ा हुआ है, पैसेंजर जा रहा है या नहीं जा रहा. तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी डिप होती है, बट ओवरऑल आपका एक्सपेंसेस हाई ही रहता है, तो आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं. So this is the fixed cost which makes all the difference, and ये ऑपरेटिंग लेवरेज का गेम इंडिगो में बहुत एप्लीकेबल है. बट अब आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इज इट जस्ट अ गुड इकोनॉमिक साइकिल, या इंडिगो ने कुछ स्पेशल किया है कि नहीं? तो आई थिंक आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू मेट्रिक्स ऑन द टेबल. नंबर वन metric which I want to discuss is your passenger load factor. So if we consider from last quarter, which is Q4 FY24 to Q4 FY25, we have went from passenger load factor from 86.2% to 87.4%. मतलब क्या है इसका? कि 87.4% of the seats of Indigo planes have been occupied, which is a very good number for an airline. Second metric is अवेलेबल सीट किलोमीटर्स, जिसको ASK बोला जाता है. वो क्या है? बेसिकली सीट्स इनटू द नंबर ऑफ किलोमीटर्स. एंड इंडिगो इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है. इट वेंट फ्रॉम अगेन Q4 FY24 में इट वाज 34.8 बिलियन, इट वेंट टू 42.1 बिलियन इन Q4 FY25. एंड हाउ इट इज मेकिंग श्योर दैट इट इज ब्रिंगिंग दिस इंक्रीज इज मोर एयरक्राफ्ट्स एंड लॉन्गर रूट्स. यही उसकी स्ट्रैटेजी रही है, विच इज हेल्पिंग इट ग्रो लाइक एनीथिंग. अब नेक्स्ट चीज दिमाग में आती है, ओके बहुत बढ़िया हो गया, ये डेटा पॉइंट्स अच्छे थे, व्हाट नेक्स्ट?
इफ यू सी ऑन द स्क्रीन के प्रमोटर ने अभी रिसेंटली बेचा है, अगस्त 28 वो डे था, मई 27 को भी अगेन प्रमोटर सेल हुआ। ऐसे ही होता रहा है प्रमोटर की सेल स्टेक in Indigo share for quite some time, and it has somehow been incorporated within the share price, so it is not something new and we do not need to get scared about it. Second thing दिमाग में आती है कि मार्केट शेयर तो बढ़ता ही जा रहा है, it is dominant and having close to 65% market share. Next पे आता है एयर इंडिया which is only 26% market share. So market share point of view से भी इसको अभी कोई खतरा है नहीं है honestly. थर्ड थिंग आती है कि क्या नियर टर्म कैपेसिटी चैलेंजेस हैं, कोई इशू है? तो नियर टर्म में हाँ, देयर आर कंस्ट्रेंट्स बिकॉज देयर आर 50 प्लेन्स व्हिच आर ग्राउंडेड आउट ऑफ क्लोज टू 450 इनका फ्लीट है, वो ग्राउंडेड है, तो समहाउ दे आर नॉट एबल टू मेक यूज ऑफ दोस प्लेन्स व्हिच आइडियली एवरीवन वुड वांट टू डू। फिर दिमाग में आता है अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है कि प्लान्ड न्यू एयरक्राफ्ट्स हैं। देख वो कह रहे हैं कि 2027 तक उनके 50 न्यू एयरक्राफ्ट्स आ जाएंगे, इसी से दे वांट टू एक्सपैंड टुवर्ड्स इंटरनेशनल रूट्स एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर ASK ऑन दीज इंटरनेशनल रूट्स। टारगेट तो ये तक है कि 40% ऑफ द ASK शुड कम फ्रॉम दिस ओवरसीज एक्सपेंशन बाय FY30। तो मेरा मोटा मोटा मानना ये है कि अभी इसका एक सपोर्ट लेवल है 5600 पे, अभी शेयर अराउंड 5660 के आसपास है, एक मोटा सा इसका सपोर्ट है 5600 पे। आइडियली इट शुड सस्टेन दैट सपोर्ट एंड विद टाइम इट शुड ग्रो एंड मूव टुवर्ड्स इवन द 10,000 लेवल्स। सो ये ओवरऑल अगर हम ये देखें कि एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में दिस इज अ वेरी गुड शेयर टू कीप इन योर पोर्टफोलियो। अगेन आई वुड जस्ट want to make you aware of the fact that 2% या 2.5% से ज्यादा कभी भी अपने पोर्टफोलियो में किसी एक शेयर को मत डालिए। Do share and subscribe if you like the video. Thank you.